हिमाचल ने भी बना दिया है, because that was one point where we differed with the Anna team. They had conceived that if there is delay in any public welfare scheme because of the bureaucratic red tape, etc., that would be deemed corruption. We said it would not be fair to regard it as corruption, because they had proposed that that officer would be jailed, imprisoned for 6 months. We said no, we don't agree with that, and our approach in this regard is that they should be penalized, and that penalty should go to the people who have suffered because of that delay. And they agreed subsequently. Smita Mishra from Bhaskar. मैं नहीं मानता हूँ कि वो कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुनौती देती तो हमसे क्यों डिस्कस करती। हमसे बहुत जिसको कहे अच्छा पर्पसफुल डिस्कशन हुआ, जिसमें उन्होंने जितनी सारी बातें हमसे हुई डिटेल्स में सुषमा जी और अरुण जी हाउस में भी बता चुके हैं, तो मुझे संतोष है। मैं तो समझता हूँ कि उसके कारण भी देश में एक सही वातावरण पैदा हुआ है इन फेवर ऑफ प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ। जयप्रकाश नारायण जी अपने आंदोलन के दौरान चुनाव सुधारों की चर्चा में राइट टू रिकॉल की बात करते थे। आज अन्ना हजारे जी राइट टू रिकॉल के साथ साथ राइट टू रिजेक्ट की भी बात कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? ये सारे डिटेल्स की बातें हैं, उन पर कई बार चर्चा हुई है, अभी भी चर्चा हो सकती है जब भी सवाल आएगा। लेकिन मैं मानता हूं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म इज नेसेसरी, दो इट शुड बी बोर्ड इन माइंड दैट देयर इज हार्डली एनी कंट्री इन द वर्ल्ड, certainly not a large country as India, as large as India or of similar size, where the right of recall is there. It's not simple. All these practical considerations have to be borne in mind. Even if there were no yatra, if there is any state which is governed by the BJP or any NDA partner, and we come to know of it, we deal with it. We deal with it. ऐसा नहीं कि हम इग्नोर करते। जहाँ पर भी होता है हमारा कर्तव्य है, यात्रा हो कि ना हो, भ्रष्टाचार को डील करना अगर है हमारे यहाँ पर। आखिर तो इतने लेवल्स हैं, मैं जानता हूँ कि बहुत सालों से खास करके नगर पालिकाओं में, कॉरपोरेशंस में हमको कितना भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। वी डील विथ इट। Not for the first time. If you were to follow even our joint all-party meetings that we conducted, in all respects we said anyone who raises the issue of corruption and stresses probity in public life, he does it through Lokpal, or this is the kind of Lokpal that we need, etc. Howsoever he does it, we supported it. So it's not the first time that I've said it. Pointed out even then that there was a difference between what Jayaprakash ji did and what is now being done. Jayaprakash ji not only first mobilized the students and had an anti-corruption campaign in Bihar on the lines of what was happening in Gujarat those days. मैं आपको अगर बताऊं, कल अगर जयप्रकाश जी के जन्मदिन पर और बिहार से शुरू करने का कारण है तो उसमें ये भी है कि मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति में जो पहला परिवर्तन आया वह जयप्रकाश जी के आंदोलन के कारण आया। 1974-75 में उन्होंने शुरू किया।
ये ठीक है कि साइमल्टेनियसली वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया जिसके कारण इमरजेंसी हो गई और इसीलिए इमरजेंसी के खिलाफ माने लोकतंत्र के पक्ष में भी जयप्रकाश जी के नेतृत्व में वो परिवर्तन आया विच ब्रॉट अबाउट अ चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन 77 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्री इंडिया के पहला जो नई दिल्ली में परिवर्तन आया वो 77 में आया, जयप्रकाश जी के नेतृत्व के कारण आया। तो लेकिन हाँ, जयप्रकाश जी understood the importance of political parties and therefore he mobilized the support of all political parties against corruption and in favor of democracy. He did not ignore them कि मेरे यहाँ पर political party कोई नहीं आएगी, never did it. Upadhyay Times Now. Madhya Pradesh, that is in the center, that is at the center. In Madhya Pradesh we have brought in a law which is called public service, जो public service delivery system. It's a central law. It should be a central law. वैसे हम चाहे तो स्टेट वाइज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं तो बेसिकली मैं मानता हूँ कि सेंट्रल लॉ सारे देश के लिए अप्लाई हो, वो अच्छा हो ज़्यादा. जस्ट एज ऑल इलेक्टोरल लॉज आर जनरली सेंट्रल लॉज, दो इन रिस्पेक्ट ऑफ लोकल बॉडीज देयर आर सेपरेट इलेक्शन लॉज. I heard it for the first time. हमारे यहाँ तो कभी कोई ऐसी चर्चा हुई नहीं, लेकिन उनकी इतनी चिढ़ हो गई है, उनसे क्या. अभी तो कोई चर्चा शुरू ही नहीं हुई, होने दो. देखिए, पार्टी को कई प्रकार के सवालों से डील करना पड़ता है, वो डील करती रहती है. मैं तो एक अभी देख करके इस सवाल को क्या एक किसी एक चैनल पर आ रहा है, आई वाज सरप्राइज्ड माई सेल्फ. और मेरी तो कोई नरेंद्र मोदी से कल परसों में कोई बात भी नहीं हुई और फिर भी पता नहीं क्या क्या लिख रहे. अमित, न्यूज़ 24 टेलीविजन चैनल से मैं स्वयं पत्रकार रहा हूँ. कंपटीशन बिटवीन प्रिंट मीडिया एंड द टेलीविजन and the proliferation of television channels has made some of us of the journalist fraternity unmindful of checking facts. I wish this should not happen. मुझे बहुत दुख होता है, मैं पत्रकार स्वयं हूँ. इस बारे में भी एक खबर छपी है वहाँ पर रूपाला जी के नाम से मैंने देखा. और इस विषय में कुछ दिन पहले उनसे बात हुई थी. उन्होंने कहा कि आपकी यात्रा आएगी, मैं बहुत निश्चित रूप से वहाँ पर हूँगा. I do not know in what context he said that, and I think Parliament is the highest authority of the representative of the people. प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसका निर्णय पार्टी करेगी जब इलेक्शन आएगा. ये कोई निर्णय अभी तो कम से कम अभी तो 2-3 साल पड़े. और हाँ, ये बात अलग है कि इस सरकार ऐसी चलाई है कि आम आदमी लगता है कि कहीं किसी समय गिर जाए, और यहाँ दूसरे आदमियों को इसी में लगता है कि क्या इसको 3 साल बर्दाश्त करना पड़ेगा, इतने दुखी हो रहे हैं. ये सारे फैक्टर्स होते हुए भी फैक्ट ये है कि निर्णय पार्टी करेगी कि भाई कौन हमारा नेता होगा. हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है. मुझे इस बात का बहुत दुख है, बहुत अफसोस है कि मुझे नहीं स्मरण आता कि किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर के और राजनीतिक मांग को लेकर के
और इतनी संख्या में सुइसाइड्स हुए हों. This is perhaps one example where for the sake of Telangana, more than 600 persons have committed suicide, and yet there seems to be a tendency on the part of the government to disregard the issue. It's shocking really. मैं तो कल ही किसी से पूछा कि ये क्या एग्जैजरेटेड फिगर है, क्योंकि पहले तो अभी तक फार्मर्स के सुसाइड सुनते थे बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. ये जो है इट इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम, इट इज बिकॉज ऑफ देयर एंग्विश ओवर अ डिमांड नॉट बीइंग मेट. आई एम सॉरी, हाँ अभी अभी मुझे सूचना मिली जगजीत सिंह जी का स्वर्गवास हुआ. समझता हूं कि बहुत बड़ी क्षति है देश की क्षति है, संगीत के क्षेत्र की क्षति है, कला के क्षेत्र की क्षति है. बहुत कम ऐसे लोग, कोई होगा नहीं दूसरा, कि जिसने गज़ल को और आम जनता तक इस प्रकार से पहुंचाया प्रभावी रूप से जितना जगजीत सिंह जी ने पहुंचाया. ये बात अलग है कि उनकी जो संगीत कला थी वह केवल गज़ल के क्षेत्र में नहीं थी, भजन के क्षेत्र में भी थी, सामान्य संगीत के क्षेत्र में भी थी. एक असाधारण व्यक्तित्व थे और लगभग 70 वर्ष की उनकी आयु में उनका स्वर्गवास हुआ. बहुत शोक की बात है. मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ.